year I am going to present Group A, Meena and Niju, about share market. Good morning, sir. My name is Neetu Singh. I study in 11th English Medium Commerce. Today our topic is share market. Then my partner will be explanation. Good morning to respected chairman, sir, teachers and all my dear friends. My name is Meena Singh. I am from standard 11th Commerce. आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट. शेयर मार्केट जहाँ पर सभी कस्टमर्स पब्लिक इन्वेस्ट करके कंपनीज में शेयर्स खरीदती है और बेचती है. शेयर मार्केट जब कंपनीज के पास इतना इनफ कैपिटल नहीं होता तो वो पब्लिक को सजेस्ट करते हैं कि आप हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा. अगर शेयर मार्केट की शुरुआत की बात करें तो ये 16th सेंचुरी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू हुआ था. जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती थी शिप के द्वारा, तब पब्लिक उनमें इन्वेस्ट करने लगे तो उन्हें भी प्रॉफिट हुआ, तो इससे और उनको प्रोत्साहन मिला. शेयर मार्केट के अंदर दो चीज होती है, बुल एंड बियर मार्केट. बुल मार्केट, इसे हिंदी में तेजी का बाजार भी कहते हैं. जब शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता ही रहता है, ग्रोथ लगातार ग्रोथ होती है, तब उसे हम बुल मार्केट कहते हैं. और बेयर मार्केट, जिसे हम हिंदी में मंदी का बाजार भी कहते हैं, जब लगातार ग्रोथ डाउन होती जाती है, कंपनीज के उनके शेयर कम खरीदे जाते हैं, तब उसे बेयर मार्केट कहते हैं. ऐसी सिचुएशन को बेयर मार्केट कहते हैं. BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत और एशिया का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज है, एजेंसी कंपनी है, जो कि स्टार्ट हुई थी 1875 में. यह मुंबई में स्थित है. थैंक यू सर. So second year I am going to present method and tricks about GST. Good morning everyone. My name is Mehta Mansuri. I am studying in English medium. My partner will be explaining. Good morning all of you. My name is Shubham Bose. I am from Indian English medium. Our project name is structure of GST. Before I explain starting our project, I would like to give some general information about GST. GST means Goods and Service Tax. GST was implemented on 1 July 2017. In easiest language, GST is single national tax. It is summed up by the slogan, One Nation, One Tax. Let's back to our project. First topic is type of GST. First is our purchase tax. Purchase tax, when we purchase some products, goods, it is known as purchase tax. Excessive duty, when we manufacture any material or products, this is known as excessive duty. Value added tax. Before introducing GST, we want to pay VAT, value added tax. It is value added. This is known as VAT. Luxury tax. When we purchase some luxury item, then we want to pay luxury tax. Then service tax. When we take some service from anyone, then we want to pay service tax. Entry tax. When we enter any state, then we want to pay entry tax. Then local tax. When we enter any cities, we want to pay local tax. 18% and 28%. Our project is based on old GST system. New GST system is there are only 2%, 12, 5% and 18%. First 0%. All type of food, grain, wheat, jawar, salt. These have only 0% tax. Next is our 5%. Mustard oil, spices, coffee, Indian sweets, tea, etc. have only 5% tax. Processed food, jelly, cheese, ice cream, pickles, etc. has 12% tax. Smartphone, refrigerator, soap, toothpaste, and etc. has 18% of tax. Luxury items, luxury cars, pan masala, motorcycle, etc. has 28% tax. Thank you. I study in my topic is three sector of commerce. Good morning everyone. My name is Pitusha. I study in 11th English medium commerce. Today is my topic three sector of economics. Three sector. First primary sector, second secondary sector, and third tertiary sector. First primary sector is agriculture. Agriculture is a forest, animals, fishing, farming, and dairies. In a primary sector. Second secondary sector, industry, steel industry, and companies वगैरह etc. Third and tertiary sector, service sector, banking, shopping mall, hospital, school, and etc. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर आता है. एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट होने से पहले भी आती थी और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी चलती रहती है. 1940 देश आजाद होने से पहले चलता हुआ आ रहा है, अभी भी चल रहा है, बट देश आजाद होने के बाद
1991 में हमारा आया इंडस्ट्री और सर्विस। ये अभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है और ये अभी ज़्यादातर इसे मत चलाया जाता है। एग्रीकल्चर भी चलता है बट बहुत कम चलता है, लेकिन अभी इंडस्ट्री और ये सर्विस ज़्यादा चलता है। थैंक यू। कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा चेक कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेक। फर्स्ट बैरियर चेक, सेकंड ऑर्डर चेक, थर्ड क्रॉस चेक एंड फोर्थ सेल्फ चेक एंड फिफ्थ पोस्ट डेटेड चेक। फर्स्ट चेक सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि आखिर चेक होता क्या है। चेक एक ऐसा जरिया पैसा निकालने का बैंक से, ये बहुत इजी जरिया है बैंक से पैसा निकालने का। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट आता है बैरियर चेक। बैरियर चेक एक बहुत रिस्की चेक है, इसमें बहुत रिस्क होता है। इसे कोई भी पैसा निकाल सकता है, कोई भी दूसरा पर्सन निकाल सकता है, क्योंकि ये और बैरियर है। एग्जाम्पल में मैंने अपने ऑफिस में चेक बना के रख दिया बैरियर का, कोई भी दूसरा पर्सन आके ये चेक आसानी से निकाल सकता है बैंक से। बैंक वाले इसे कोई प्रूफ, कोई आइडेंटिटी नहीं मांगे, पैसा इसको दे देंगे। सेकंड चेक पे हम आते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक ही ज़्यादातर यूज होता है बिजनेस में, इसे यूज करते हैं बिजनेस में। इसमें आपसे आपका प्रूफ मांगा जाएगा, आईडी कार्ड मांगी जाएगी, उसके बाद आपको इसमें पैसा निकाल के दिया जाएगा। हम थर्ड चेक की बात करें तो आता है क्रॉस चेक, जिसमें 2 पैरेलल लाइन होती है और इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। इसमें भी आईडी कार्ड आपसे सब मांगी जाएगी। अब तक हम लोग ने समझा 3 चेक के बारे में। फर्स्ट बैरियर चेक, ऑर्डर चेक एंड क्रॉस चेक। इसमें बताया जाता है रिक्सी है और इसमें बताया जाता है बिजनेसमैन यूज करते हैं और इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। फोर्थ चेक की बात करें तो हमारा है सेल्फ चेक। इसके नाम से पता चल रहा है कि इस चेक में क्या बोला गया है। सेल्फ चेक जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, हर पर्सन यूज करता है। फिफ्थ चेक है पोस्ट डेटेड चेक। इसे एक प्रकार का फ्यूचर चेक भी कहा जाएगा, जो फ्यूचर में यूज होता है। एग्जाम्पल में जो ट्रेडर्स अगर मिल रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, एक ट्रेडर ने डेट दिया 27 तारीख का, तो 27 तारीख को ही पैसा निकलेगा, 25 तक तो पैसा नहीं निकल सकता है। थैंक यू सो मच। Good morning, all of you. My name is Nitin Swarup. I study 11th English Medium Commerce. Today my topic is ATM. What is an ATM? The full form of ATM is automatic teller machine. The ATM machine start in 1987 in Mumbai, Maharashtra. The per day withdrawal limit is 10,000, 20,000, maximum 50,000. एटीएम क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैसे पैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले हम डेबिट कार्ड को डालते हैं, फिर हमसे पूछा जाता है पिन नंबर। 4 डिजिट के पिन नंबर होते हैं, तो हम पिन नंबर डालते हैं, तो हमारा पिन नंबर वो डालते हैं। फिर हमसे अमाउंट मांगा जाता है, हमें कितना अमाउंट निकाला है। मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते एटीएम में, 20-30,000 जितना भी निकाल सकते। जैसे हमने निकाला है 500 रुपये, हम क्लिक करेंगे 500 रुपया, फिर एंटर कर देंगे, फिर हमारा पैसा निकल जाता है। थैंक यू। My name is Vikas Gupta. I am 11th English Medium Commerce. Good morning everyone. My name is Nitin Singh. I am a student of 11th English Medium. Today is my topic of e-commerce. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है आपको बताया। बिजनेस में इसकी कंट्री, ये अदर कंट्री का, अपने कंट्री का, ये बाहर देश की इसकी कंपनी और यहाँ की इंडिया की कंपनी है। हम लोग एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके एक दूसरे को माल सप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस को। बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे आजकल वेबसाइट ऑनलाइन पे चलता है, जहाँ कस्टमर ऑनलाइन बैठे बैठे कुछ भी परचेसिंग कर सकता है। इस तरह बिजनेस टू कंज्यूमर पर डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, इसे कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है, जैसे कि इसकी कंपनी है या इसके कंपनी में आया, जॉब घर में आए कस्टमर बन गए, इसने मुझे अपना माल प्रोडक्ट सप्लाई किया, अब मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ सप्लाई देने बेचने,
वो भी एक कस्टमर बनेगा, मैं भी एक कस्टमर बनूंगा। ये आपस की दो कस्टमर की सेलिंग होती है, इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे आजकल के टाइम पे सर अमेजोन ये सब एप्लीकेशन चल रहा है, आप भी चाहे घर पे बैठे बैठे उस एप्लीकेशन में 10 से 15 हज़ार कंज्यूमर इन्वेस्ट करके अपना खुद का बिजनेस चला सकता है। इस तरह दूसरे की बिजनेस में कंज्यूमर अपना बेनिफिट दे। थैंक यू।